A very good morning to my all dear students. How are you all? Earlier I have explained you chapter 7 packing. I hope you all have got it. सबको समझ आ गया होगा I think. And today moving forward I am going to explain you the word and meanings, a few word and meanings from this chapter and your short answered questions from your book. So first word is uncanny. Uncanny means strange और weird means कुछ अलग अजीब सा. Haunts, HAUNTS, haunts means to repeatedly give trouble, बार बार किसी को परेशान करना is called haunts. Rummaged, search in a hurried way, बहुत तेज़ी से बहुत ही केयरलेसली किसी चीज़ को ढूंढना. जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तो हमें बहुत ध्यान से उस चीज़ को ढूंढना होता है, बट दिस इज़ इन अ हरीड वे और इन केयरलेस वे. नेक्स्ट इज़ हैम्पर, दैट इज़ बास्केट. ट्रॉड ऑन, स्टेप्ड ऑन, किसी चीज़ के ऊपर पैर रख देना इज़ कॉल्ड स्टेप्ड ऑन या ट्रॉड ऑन. बी सोन एट, गॉट स्कॉल्टेड, डांट पड़ना, डांट खा लेना. कंसीट, हियर इट मीन्स प्राइड, अपने ऊपर गर्व होना, इतराना. वरीड, वरीड नॉर्मली इसका मतलब होता है चिंता करना, बट हियर इट इज डिस्टर्ब्ड. नाउ मूविंग ऑन, short answered questions from your book. So first question is, how many characters are there in the narrative? Name them. Narrative means this story. यहाँ पर कितने characters हैं? I have told you there are 4 characters in it. They are George, Harris, Jerome, narrator, Jerome, that is narrator, and the dog Montmorency. ये 4 लोग थे यहाँ पर. And next question is, why did the narrator Jerome, Mr. Jerome was narrator, volunteer to do packing? क्यों उन्होंने अपने आप कहा कि I will do the packing? And the answer is, the narrator believed that he would do packing better than anyone else. किसी और से means जितने भी वहाँ पर the people present over there, उन सब से अच्छी पैकिंग वो कर सकते थे, ऐसा उनको लगता था. He believed that. He was proud of his skill. उनको अपनी स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था. So he told his friends to leave the whole work to him. इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो. Actually, but he was not interested in doing packing. He wanted to supervise it. He wanted to boss his friends. Question number 3. How did George and Harris react to this? Did Jerome like their reaction? जॉर्ज और हैरिस ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया और क्या जेरम को उनका रिएक्शन अच्छा लगा? आंसर इज, जॉर्ज एंड हैरिस readily agreed to the narrator's suggestion that he would do the entire packing. जॉर्ज और हैरिस बहुत आसानी से, बहुत ही ईज़िली मान गए थे कि हाँ ठीक है आप करो पैकिंग. But there was something mysterious about the way they accepted the offer. लेकिन जिस तरीके से वो मान गए थे तो उसमें कुछ मिस्टीरियस था, कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है इस काम में. Therefore, so the narrator didn't like their reaction. Actually they were also enjoying कि चलो अच्छा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे and will make fun of him. Next question number 4. What was Jerome's real intention when he offered to pack? Jerome's real intention, असलियत में वो क्या चाहते थे?
As I told you, he was not interested in packing. He just wanted to show off him. Answer is Jerome's real intention was to boss the packing job. He just wanted to boss his friends. He wanted his friends to do all the work under his direction. वो चाहते थे कि मैं इन लोगों को सिखाऊं, बताऊं कि पैकिंग कैसे की जाती है, एंड दे both of them were supposed to do the packing work. लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता एक्चुअली. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. What did Harris say after the bag was shut and strapped? जब बैग बंद कर दिया गया, उसको बांध दिया गया फाइनली, तब हैरिस ने क्या कहा? Why do you think he waited till then to ask? और आपको क्या लगता है कि हैरिस ने उस वक्त तक, जब तक बैग बंद हो गया, उसको स्ट्रैप कर दिया गया, तब तक क्यों वेट किया? वो पहले भी कह सकते थे, पर अकॉर्डिंग टू यू, why he waited till then? The answer is Harris asked about the boots after the bag had been shut and strapped. क्या चीज़ के लिए पूछा उन्होंने? For the boots. बैग बंद होने के बाद उन्होंने उनको शूज़ की, बूट्स की याद दिलाई. And next part, the author had forgotten his boots to put in the bag. Author means Jerome भूल गए थे अपने शूज़ को अंदर रखना. Harris waited till then because he wanted to laugh at the author. क्योंकि वो उनकी मजाक बनाना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा ट्रबल देना चाह रहे थे, परेशान करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बैग बंद होने तक वेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. What horrible idea occurred to Jerome a little later? कौन सा भयानक आइडिया आया जेरम को जब उन्होंने दोबारा से अपना बैग बंद कर लिया? उसके बाद पैकिंग होने के बाद क्या भयानक सा आइडिया आया? आंसर इज व्हेन जेरम वाज गोइंग टू क्लोज द बैग अगेन, इट अकर्ड टू हिम दैट ही फॉरगेट टू पुट हिज टूथब्रश इनटू द बैग. उनको ये याद आया कि वो अपना टूथब्रश बैग में रखना भूल गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Where did Jerome finally find the toothbrush? तो जब उन्होंने टूथब्रश ढूंढना शुरू किया तो फाइनली उनको कहाँ पर मिला? Jerome finally find the toothbrush inside a boot. एक बूट के अंदर मिला उनको. क्वेश्चन नंबर 8. Why did Jerome have to reopen the bag? Jerome had to reopen the bag because he had packed his tobacco pouch in it. जेरम को दोबारा से बैग फिर से क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपना टोबैको पाउच उसके अंदर बंद कर दिया था. इसके लिए क्या टर्म आया था हमारे चैप्टर में? इट वॉज स्पेक्टेकल्स. नेक्स्ट एंड लास्ट. व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? जॉर्ज और हैरिस ने क्या चीज़ पैक करने के लिए कहा और क्यों कहा उन्होंने? द आंसर इज जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर. जॉर्ज और हैरिस ने जो हैम्पर्स रह गए थे, रिमेनिंग हैम्पर्स, उनको पैक करने के लिए कहा. और क्यों कहा? दे डिड सो बिकॉज द नरेटर वॉज टायर्ड ऑफ पैकिंग. वो कई बार एक ही बैग को पैक कर चुके थे तो वो थक गए थे, एंड दे वांटेड टू शो हिम हाउ टू पैक द हैम्पर. और वो दोनों भी दिखाना चाहते थे मिस्टर जेरम को कि कैसे पैकिंग होती है, कैसे हैम्पर्स पैक किए जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम मोर लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस. टिल देन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.